السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیوں اور تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے اس پاٹھ میں ہم صلاۃ ارتھات نماز پڑھنے کی ودھی، نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کس طرح سے ہم نماز پڑھیں گے، صحیح حدیث کے پرکاش میں، صحیح احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ یہ باتیں ہم سیکھیں گے۔ یہ بہت ہی مہتوپورن اور خاص پاٹھ ہے، آپ دھیان پوروک سننے کی کوشش کیجئے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے، جیسا کہ میں نے نماز کے شرائط، نماز سے پہلے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں میں نے بتا دیا، اب ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کعبہ کی دشا میں صحیح طریقے سے، اچھے طریقہ سے کھڑا ہوں گے۔ کھڑا ہونے کے بعد نیت کریں گے۔ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کہنا نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت 4 رکعت، یہ سب ضروری نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر آدمی اس طرح سے کہے تو پھر اس سے پہلے وضو کرتا ہے تو اس سے بھی زبان سے نیت کرے، اس میں بھی زبان سے نیت کرے، کہے کہ نیت کرتا ہوں میں وضو کرنے کی، ظہر کی نماز پڑھنے کی 4 رکعت، پھر 2 رکعت سنت، اس طرح سے نہیں، یہ غلط ہے۔ آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے، زکوٰۃ کے لیے نہیں کرے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ 10 کلو چاول فلاں اپنے بھائی کو، نہیں، یہ سب غلط۔ آدمی جو بھی کام کرے دل کے ارادے سے کرے، اس کے دل میں جو چاہت، جو اچھا، جو اس کی خواہش ہوگی وہی اس کی نیت ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سارے اعمال جو ہے وہ نیت پر، اچھا پر نربھر ہیں۔ اس وجہ سے آدمی سب سے پہلے نیت کرے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، کس وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اور فرض ہے یا سنت ہے، کون سی نماز ہے۔ نیت آدمی کر لیا، اب جو ہے سب سے پہلے کیا کہے گا وہ؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کو اپنے کندھے تک یا کان کے لو تک اٹھائے گا، اور یہ پنجے کوشش کرے آدمی قبلہ کی طرف ہوں، ایسے نہیں بلکہ ایسے کرے، قبلہ کی طرف اس کے پنجے بھی ہوں۔ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر باندھ لے۔ داہنا ہاتھ اوپر ہو اور بایاں ہاتھ نیچے ہو۔ آدمی اپنے سینے پر باندھ لے، بہت ہی اتم اور افضل ہے۔ ہردے پہ اپنا ہاتھ رکھ کر کے جو آدمی نماز شروع کرتا ہے۔ نیت باندھنے کے بعد جو ہے اب ہمیں سب سے پہلے کیا کہنا ہے؟ ثنا، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کو پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اور دوسری دعائیں بھی ہیں، ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح سے اللہم باعد بینی وبین خطایا، کئی طرح کی دعائیں ہیں، آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی بدل بدل کے پڑھے، کیونکہ اس سے جو ہے نماز میں اس کا دھیان لگے گا، اس کا دل جو ہے نماز میں لگے گا۔ ثنا پڑھنے کے بعد، یعنی دعائے استفتاح پڑھنے کے بعد، پھر آدمی جو ہے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دے۔ سورہ فاتحہ یہ پڑھنا بہت ضروری ہے، ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے، سب کے لیے، امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ مکمل کریں گے، کیسے پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سارے لوگ پھر آمین کہیں گے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی سورت ملائے گا، کوئی بھی سورت یا قرآن کی کچھ آیتیں پڑھے۔ پڑھنے کے بعد پھر آدمی رکوع کرے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے کندھے تک یا کان کے لو تک آدمی رکوع میں جائے گا۔ رکوع میں دھیان دے، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھ کے گھٹنے کو جو ہے مضبوطی سے پکڑ لے، پیٹھ کو اور سر کو برابر رکھے، اور اپنی نگاہ کو جہاں اس کے لیے اتم ہے، سجدے کی جگہ پہ یا اپنے پیروں پہ، جہاں بھی رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، بس یہ ہے کہ دل لگا کے نماز پڑھے، ہتار یعنی جلدی نہ کرے، اور نمرتا پوروک نماز پڑھے۔ رکوع میں آدمی گیا ہے، مضبوطی کے ساتھ اپنے گھٹنے کو پکڑ کے اچھی طرح سے رکوع کر کے دعا پڑھیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، 3 بار پڑھنا اتم اور افضل ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 1 بار پڑھنا انیواریہ یعنی ضروری ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اور پھر رکوع سے اٹھیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیں گے، اور اب اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھائیں گے۔
क्या पढ़ेंगे? समी अल्लाहु लिमन हमिदा। इमाम है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़ेंगे। कोई आदमी अकेले नमाज पढ़ रहा है, मुनफरिद सुन्नत या नफिल नमाजें पढ़ रहा है, वो भी समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेगा। लेकिन मुक्तदी जो है वो रब्बना वलकल हम्द कहेंगे, वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहेंगे, सिर्फ रब्बना वलकल हम्द कहेंगे। बाकी और तकबीरात मुक्तदी भी कहेंगे। अल्लाहु अकबर सजदा में जाने के लिए, रुकू में जाने के लिए मुक्तदी भी कहेंगे जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, अब रुकू से उठ के सीधा खड़ा होना है, यहाँ तक कि सारी हड्डी जो है अपनी जगह पे आ जाए। सीधा खड़ा होंगे और फिर और दुआएं भी हैं, जैसे हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, इस दुआ को पढ़ सकते हैं। दूसरी दुआएं हैं उसको भी पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। कुछ लोग रुकू से अभी सीधा खड़े नहीं होते हैं, सजदा में चले जाते हैं, उनकी नमाज सही नहीं होती है। रुकू से सीधा खड़े होकर के पूरे अच्छे तरीके से इस दुआ को पढ़ेंगे और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा में जाएंगे। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा में जाएंगे। सजदा में पहले दोनों हाथ रखेंगे, फिर घुटनों को रखेंगे और अच्छे तरीके से सजदा करेंगे। आदमी कोशिश करे 7 अंगों पे सजदा करे, 7 अंगों पे। नंबर 1, पेशानी और नाक, ये दोनों ज़मीन पर होना चाहिए, दोनों धरती के ऊपर, नाक भी और पेशानी भी दोनों धरती के ऊपर। हाथ के दोनों पंजे ये भी धरती के ऊपर होना चाहिए। दोनों घुटने और पैर के दोनों पंजे, पैर के दोनों पंजों को आदमी मोड़ के क़िबला की तरफ किए रहे और नमाज पढ़े। दोनों पैरों को मिला करके क़िबला की तरफ जो है अपने पैर को किए रहे, ये उत्तम और बेहतर है उसके लिए। दोनों पंजे ज़मीन पर हों और आदमी कोशिश करे उसके ये किहुनियाँ जो हैं ये भी धरती से ऊपर हों, ज़मीन से ऊपर हों, और अपने बाजुओं को अपने जिस्म से, अपने पेट से अलग रखे, दूर रखे, चौड़ा करके जो है आदमी अच्छे तरीक़ा से सजदा करे, अपने किहुनियों को ज़मीन से उठा करके अच्छी तरीके से सजदा करेंगे। नाक और पेशानी दोनों ज़मीन के ऊपर है और सजदे में हम दुआ करेंगे। कौन सी दुआ पढ़ेंगे? सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 बार, उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं और एक बार पढ़ना ये अनिवार्य है, ज़रूरी है, पढ़ें, एक बार ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा दूसरी दुआएं भी है, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, इसको भी पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। सजदे में आदमी इसके अतिरिक्त और भी दुआएं कर सकता है, क्योंकि सजदा में ये दुआ की कबूलियत की जगह होती है। अल्लाह ताला सजदा में दुआएं ज़्यादा कबूल फरमाता है। सजदा करने के बाद अब फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए उठेंगे और बैठ जाएंगे। कैसे बैठेंगे? बायां पैर को बिछा लेंगे, बाएं पैर के ऊपर बैठ जाएंगे और दाहिना पैर को खड़ा रखेंगे। दाहिने पैर की उंगलियां क़िबला की तरफ रहेंगी, उत्तम यही है। बैठ करके उस बीच में आदमी नम्रता पूर्वक आराम से बैठे, मुतमईन हो करके, इत्मीनान के साथ, जल्दी ना करे और दुआ पढ़े, रब्बि ग़फ़िरली रब्बि ग़फ़िरली। इसके अलावा और भी दुआ है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। इस दुआ को उस बीच में आदमी पढ़ेगा, दोनों सजदों के बीच में। इसको पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करेंगे, वैसे ही जैसा हमने पहला सजदा किया, अच्छे तरीके से। इंशाअल्लाह हम वीडियो के मार्फत भी अमली तौर पे प्रैक्टिकली रूप से आपको ये सारी बातें बताने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद से जब ये दूसरा सजदा हमारा मुकम्मल हो जाएगा, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए हम सीधा खड़ा हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधा खड़ा हो जाएंगे और फिर अपने दोनों हाथ को अपने सीने पर रख लेंगे, अपने सीने पर रख लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा 1 रकात मुकम्मल, 1 रकात जो है हमारा पूर्ण हो गया, 1 रकात जो है हमारी मुकम्मल हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिर दूसरी रकात शुरू करेंगे, तो उसके लिए हमको अब दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सेम वैसे ही। फिर उसके बाद से आमीन कहेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे और फिर उसके बाद से रुकू और सजदा सेम जैसा कि मैंने बताया पहले रकात में करेंगे, उसी तरह से रुकू और सजदे करेंगे और फिर दूसरे रकात में बैठ जाएंगे। रुकू और सजदे करने के बाद सेम वैसे ही दूसरे रकात में बैठ जाएंगे, बाएं पैर को बिछा के उस पर बैठेंगे, दाहिना पैर खड़ा रखेंगे और दुआ पढ़ेंगे। उसको तशहुद कहते हैं। तशहुद में अत्तहियात पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस तरह से आदमी बैठेगा, अपने दोनों हाथ को अपने दोनों रान पे रखेंगे और इस अवस्था में आदमी अपने दाहिने हाथ को इस तरह से मुट्ठी बांध के शहादत की उंगली को खुला रख के इससे संकेत भी करना है, इससे इशारा भी करते रहना है। तो अगर वो 2 रकात वाली नमाज है तो फिर तहियात पढ़ने के बाद दरूद शरीफ भी पढ़ेंगे और दरूद शरीफ के बाद की दुआ भी पढ़ेंगे और फिर सलाम फेर देंगे। और अगर 3 या 4 रकात वाली नमाज है, जैसे मगरिब की नमाज या इशा की नमाज,
3 या 4 रकात वाली नमाज, तो फिर आदमी 2 रकात सिर्फ तहियात पढ़ के खड़ा हो जाएगा और खड़ा होकर सेम वैसे ही सूरह फातिहा पढ़ेंगे। लेकिन आखिर की जो 2 रकातें हैं या तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाने की आवश्यकता नहीं है, सूरत मिलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सूरत जो है सिर्फ शुरू की 2 रकातों में मिलाएंगे। मगरिब में 3 रकात है तो सिर्फ शुरू के 2 रकातों में सूरत के साथ सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाएंगे, तीसरे में मिलाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही सूरह फातिहा पढ़ के रुकू सजदे मुकम्मल करके फिर अंतिम रकात में तशहुद के लिए बैठेंगे और उसमें बैठ के फिर तहियात जो कि मैंने बताया पढ़ के अभी उसी को पढ़ेंगे, उसी तरह से तहियात पढ़ेंगे और तहियात पढ़ने के बाद फिर दरूद शरीफ भी पढ़ेंगे। दरूद शरीफ कैसे पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर इसको पढ़ने के बाद आदमी और भी कोई दुआ करना चाहता है, दुआ पढ़े। ख़ास तौर से अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल व मिन फ़ितनतिल महया वल ममात, इस दुआ को पढ़ सकता है। उसके अलावा अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरुद्दुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, इस दुआ को भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी दुआएं कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। यहाँ पे एक बात और ध्यान दें, जो अंतिम रकात है 4 रकात वाली नमाज, उसमें तवर्रुक करना उत्तम और अफजल है। तवर्रुक क्या होता है? आदमी अपने बाएं पैर को अपने नीचे से निकाल के जो है बाहर की तरफ कर दे और अपने चूतड़ के बल जो है, अपने सुरीन के बल जो है आदमी धरती पर बैठ जाए और दाहिना पैर को खड़ा रखे, इसको तवर्रुक कहते हैं। ये सुन्नत है, अफजल और उत्तम। इस तरह से बैठे आदमी अंतिम रकात में और शहादत की उंगली से इशारा करते रहे और ये सारी दुआएं पढ़ता रहे, ये सारी दुआएं पढ़ता रहेगा। और फिर दुआएं पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं पढ़ लिया, फिर वो सलाम फेरेगा। सलाम कैसे फेरेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ऐसे करते सबसे पहले दाहिने तरफ अपने चेहरे को घुमाएंगे और फिर बाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए बाएं तरफ जो है अपने चेहरे को घुमाएंगे। इस तरह से जो है सलाम फेरने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज मुकम्मल हो गई, हमारी नमाज पूर्ण हो गई। इस तरह से नमाज पढ़ने की हम कोशिश करें मेरे भाइयों। सबसे अहम, सबसे ख़ास और महत्वपूर्ण बात क्या है? आदमी दिल लगा के नमाज पढ़े, दिल को इधर उधर भटकने ना दे। नमाज में बहुत इधर उधर के ख्यालात आते हैं, आदमी ख्यालात को दूर रखे और ये वो बराबर सोचता रहे कि मैं अपने पालन करता अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सारे जहान का खालिक और मालिक है उसके सामने खड़ा हूँ। वो हमारे हृदय के भेद को, हमारे दिल के अंदर जो बातें छुपी हुई हैं उसको भी जानता है। तो इंशाअल्लाह हमारा नमाज जो है, नमाज में हमारा दिल लगेगा और ये सारी दुआएं हमको अच्छी तरह से याद कर लेनी चाहिए। नमाज में जल्दी ना करें, रुकू से उठने की दुआ, दोनों सजदों के बीच की दुआ, ये सारी दुआएं हम याद करें और नम्रता पूर्वक नमाज पढ़ने की कोशिश करें, तब जो है हमारी नमाज कबूल होंगी। वरना जल्दी जल्दी अगर कौवे की तरह चोंच मार लेंगे फिर उससे हमको फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला हमको अच्छे तरीक़े से नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाते थे सहाबा को और उनसे कहते थे कि तुम लोग ऐसे ही नमाज़ पढ़ो जैसा मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखते हो। सहाबा ने अल्लाह के रसूल को नमाज़ पढ़ते हुए देखा, अल्लाह के रसूल से सीखा और फिर तमाम लोगों को सिखाया नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा। तो उसी तरीक़े पर हमको पढ़ना चाहिए। हम हर संभव प्रयास करें सही अहादीस के प्रकाश में नमाज का क्या तरीक़ा है वो तरीक़ा सीखने की कोशिश करें और उसी तरीक़े पे नमाज़ पढ़ें, उसी विधि अनुसार हम हर कर्म करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हमको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे नमाज को कबूल फ़रमाए, हमारे तमाम सत्कर्मों को स्वीकार करके हमको स्वर्ग में स्थान प्रदान करे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।